آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا دوردرشن اردو کے ایک خاص پروگرام کتاب کائنات کی اس کڑی میں۔ کتاب کائنات پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ ہے آج کل اور پریم چند۔ ناظرین، کتاب کی اہمیت کے متعلق جتنی بھی بات کر لیں کم ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، ہماری ترقی اور ہمارے ذہن کو وسیع کرنے کا کام کتابیں کرتی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں جس کتاب پر ہم بات کریں گے وہ ہے آج کل اور پریم چند، جسے ابرار رحمانی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس میں آج کل میں چھپے اہم مضامین پریم چند کے حوالے سے ان کے متعلق وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور بڑی دلچسپ اور بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ تو اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ آپ اردو شعر و ادب کی ایک ممتاز حیثیت ہیں، اور آپ کا نام اردو شعر و ادب میں بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قداور ادیب و نقاد ہیں آپ، تو بہت بہت خیر مقدم ہے سر آپ کا ہمارے پروگرام کتاب کائنات میں۔ اور اس کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے پریم چند کے حوالے سے شروعاتی کلام آپ کے ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، پریم چند ہمارے بہت بڑے فکشن رائٹر تھے، اور پہلے افسانہ نویس تھے۔ ناول کی شروعات تو اس سے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ناول جس شکل میں پریم چند کے یہاں ہے اس سے پہلے اس شکل میں نہیں تھا، تو چیزیں آتی ہیں، پھر ان کی کوئی باضابطہ شکل بنتی ہے، لیکن پہلے افسانہ نگار تھے پریم چند۔ تو اس اعتبار سے ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ دوسرا یہ کہ حقیقت نگاری ایک چیز ہے، حقیقت نگاری اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فکشن کا جو معاملہ تھا اس میں جس طرح کی تحریریں اس سے پہلے سامنے آئی تھی، خواہ وہ خواب و خیال کی باتیں، خواب و خیال کی رتن ناتھ سرشار کی چیزیں ہوں، یا ان کے ناول ہوں ڈپٹی نذیر احمد کے جو اس سے پہلے آ چکے تھے، یا اس سے پہلے داستان کا پورا ایک سلسلہ عیاری والی، ہاں، تو اس میں بیشتر چیزیں جو تھی وہ خواب و خیال کی تھی یا مافوق الفطری باتیں تھیں۔ زندگی کی جو اصل حقیقت ہے اس کو دکھانے والوں میں پریم چند کا بڑا غیر معمولی نام ہے اور بڑا غیر معمولی کام ہے۔ ان کے چاہے ناول آپ دیکھ لیجئے، چاہے ان کے افسانے آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے واقعی ایک غیر معمولی نقش قائم کیا، اور آگے آنے والی نسلوں پر ان کے اثرات مرتب ہوتے رہے، اور بہت کچھ انہوں نے جو ہے ادب کو دیا اور نئی نسل کو سکھایا۔ تو یہ واقعہ تو ہے کہ پریم چند۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہندوستان تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیہات کا ملک ہے، جس میں گاؤں بہت زیادہ ہیں، اور بڑی غیر معمولی اہمیت ہندوستان کی زندگی میں گاؤں کی ہے۔ تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا میدان عمل بنایا، اور دیہی زندگی میں انسان کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو بالکل حقیقت کے ساتھ اس کو ایک اپنے خاص فنکارانہ انداز میں پیش کیا۔ تو اس اعتبار سے کہا جائے تو ایک بڑے فنکار پریم چند ہیں، جنہوں نے زندگی کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اب اگر ترقی پسند تحریک کی بات کریں، آپ پہلا جو ترقی پسند تحریک کا جو پہلا جلسہ تھا اس میں پریم چند نے صدارت کی تھی، تو ترقی پسند تحریک اور پریم چند اس حوالے سے آپ دیکھیے، ترقی پسند تحریک تو اس وقت شروع ہو رہی، لیکن پریم چند کے ہاں وہ خیالات و نظریات پہلے سے تھے، وہ خاصی مطابقت تھی۔ اسی لیے انہوں نے ان کو لوگوں نے منتخب کیا کہ جو پہلا جلسہ تھا لکھنؤ میں ہوا تھا 1936 میں، تو اس میں وہ صدارت کریں گے، اور انہوں نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ ان کے خیالات اس سے مطابقت رکھتے تھے۔ انہوں نے وہاں کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، اس کو بہت کوٹ کیا گیا، اور اگر اس کو پھیلا کے دیکھا جائے تو اس کے بڑے معنی ہیں۔ اور واقعی آپ دیکھیے، پہلے آپ لوگوں کے ڈرائنگ روم میں دیکھیں گے پھول لگتے تھے، بعد میں لوگ کیکٹس بھی لگانے لگے اس میں۔ تو ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز میں اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسن جو ہے وہ آدمی کی آنکھ میں ہے، تو وہ
किस चीज़ को कैसा देखना चाहता है वो तो उस पर मुनहसर है। तो प्रेमचंद ने ज़िंदगी को किस गहराई से समझा, अगर न समझा होता तो ये जुमला न बोला होता। तो ये वाक़या है कि तरक्की पसंद तहरीक ने जो सूरत इख्तियार की और बाद में जितने लोग उसमें शामिल होते चले गए, बकौल मजरूह के कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वो बनता गया, लेकिन प्रेमचंद तो वो हैं कि जिस वक्त बुनियाद की ईंट रखी जा रही थी उस वक्त वो एक ख़ास हैसियत में वहाँ आए और उन्होंने जो उस वक्त गुफ्तगू की वो बड़ी गैर मामूली गुफ्तगू उनकी थी। प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, इस किताब में जो मज़ामीन हैं उसमें जो जिन कलमकारों के मज़ामीन हैं उन्होंने प्रेमचंद के फ़िक्र फ़न को किस नज़रिए से, किस ज़ाविये से देखने की कोशिश की है, अगर इस किताब की बात करें तो? मेरे ख़्याल ये किताब ख़ासी अहम है और आजकल में जो मज़ामीन प्रेमचंद से मुतालिक शाये होते रहे थे उनको इसमें अबरार रहमानी साहब जो आजकल के एडिटर भी रहे हैं उन्होंने इसकी तदवीन की है, तरतीब दी है। तो और इसका ख्याल रखा है कि प्रेमचंद से मुतालिक जितने भी पहलू हो सकते हैं वो सब इसमें आ जाएं। चुनांचे प्रेमचंद से मुतालिक तमाम तर पहलू जो है वो इसमें आ गए हैं। इस तरह के मज़ामीन लिखे गए। ख़ास तौर पे शुरू में 2 छोटे छोटे मज़मून हैं वो मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद आए, बड़े मालूमाती मज़ामीन हैं। एक तो कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की डायरी के बारे में लिखा है और दूसरा मज़मून जो है वो उनका है चतुर्वेदी का, बनारसी दास चतुर्वेदी, वो प्रेमचंद की खतूत के बारे में। हालांकि इसमें डायरी के सिर्फ 64 औराक है जो कि और नहीं मिले होंगे, जो मिले उसी की बुनियाद पर उन्होंने लिखा है। और जो खतूत वाला मज़मून है उसमें भी बहुत कम खतूत हैं, लेकिन जो बात उससे निकल के आई हैं बातें वो बहुत अहम है और उससे प्रेमचंद के लिखने के अंदाज़ पर, प्रेमचंद के सोचने के अंदाज़ पर, प्रेमचंद की ज़िंदगी क्या थी, वो किस तरह क्या क्या काम और किस तरह करते थे, वो उस पर जो रोशनी पड़ती है जो बाज़ मज़ामीन में या उससे पहले जो लिखे गए हैं उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो उसमें सिर्फ 64 सफ़े का वो है। उसमें अब देखिए, आप जानते हैं प्रेमचंद बुनियादी तौर पे उर्दू के अदीब थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उसके बाद प्रेमचंद ने ख़ुद लिखा है, अपनी डायरी में लिखा है कि मैं कभी उर्दू में लिखता हूँ और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर लेता हूँ, कभी मैं हिंदी में लिखता हूँ बुनियादी तौर पे, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करता हूँ, और कभी किसी दूसरे से भी, एक इकबाल वर्मा शायर थे, उन्होंने भी प्रेमचंद के तर्जुमे किए हैं उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में। अब उसी ये इनका डायरी है उसमें कई चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त देखने में आई। एक ये कि जो 64 सफ़ात हैं डायरी के, उसमें 56 सफ़ात जो हैं वो अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, 1 सफ़ा हिंदी में लिखा हुआ, 3 सफ़ात उर्दू में लिखे हुए हैं। गोया ये कि जो रोज़मर्रा का कामकाज था, सोचने का तरीक़ा था, उसमें प्रेमचंद को अंग्रेज़ी में लिखने में आसानी होती थी, वरना 56 सफ़ात ना होते। हिंदी में 1 सफ़ा लिखा हुआ, उर्दू में 3 सफ़ात लिखे हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि उसमें यह भी अंदाज़ा होता है इस डायरी में जो उन्होंने बातें लिखी हैं कि प्रेमचंद किस तरह लिखते थे, किस तरह सोचते थे। पहले वो नावल का और कहानियों का प्लाट पहले से जहन में उनके होता था, वो उसको अंग्रेज़ी में लिख लेते थे और उसके बाद कहानी उस पर उर्दू में या हिंदी में लिखते थे। तो ये कितनी अजीब व गरीब और दिलचस्प बात है, और ये अगर डायरी के सफ़ात सामने ना आए होते तो शायद ये बात ना मालूम हुई होती, जो बड़ी अहम बात है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान को अगर देखना हो तो उनके गाँवों को देखना चाहिए, तो इस लिहाज से प्रेमचंद के नावल और अफसाने वो किस तरह से उसकी अक्कासी करते हैं? प्रेमचंद के तो नावल और अफसाने जो है उनकी बहुतात जो है उसमें तो गाँव ही की अक्कासी की गई है। और चाहे उनका यही कफन जिसका अभी जिक्र हुआ बड़ा अफसाना है, चाहे गौदान जो उनका नावल है जिसको शाहकार नावल कहा जाता है, उन दोनों को देखिए तो उसमें भी गाँव ही के वाक़यात और मामलात और पूरी ज़िंदगी और वो किस तरह जो ढांचा और ताना बाना है समाज का वो उसमें सामने आता है। जैसे इसमें घीसो माधो है, ये भी आप किरदारों के नाम ही देखिए, शहर के नाम नहीं है। इसके अलावा वहाँ होरी है और धनिया है और गोबर है, वो सब भी गाँव ही के नाम है। दूसरा ये कि आप ये जो गौदान है उसका पूरा वो देख लीजिए, वो तमाम किरदार देख लीजिए, ख़ास तौर पर जो आपने कहा कि वो किस तरह गांव की ज़िंदगी उभर के सामने आती है,
تو گاؤں کے کردار ہیں، ان میں ایک کردار آتا ہے مہتا کا، جو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، بڑے فلسفیانہ انداز پہ اس میں اظہار خیال بھی کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب گاؤں کی یہ دیہاتی زندگی اور جس طرح کا پورا ماحول ہے اس میں ایک اس طرح کے کردار کی کیا گنجائش ہے. لیکن یہ پریم چند کی ذکاوت اور فکشن میں جو ایک مہارت ان کی تھی اس کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک اس طرح کا کردار بھی رکھا کہ جو اس طرح کے معاملات پہ باقاعدہ تبصرہ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر شہپر رسول صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے اس ایپیسوڈ کا، اس کڑی کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنے اس کڑی کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ایک ہندی کی کتاب پر تبصرہ کریں گے، چرچا کریں گے. ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام کے دوسرے حصے میں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتاب کائنات. آپ اس حصے میں ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہری ونش رائے بچن، جیون اور سرجن کے سوپان. یہ راج شیکھر جی اس کے مصنف ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر گریما شریواستو جی. آپ سینٹر فار انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور آپ ایک بہت بڑی رچناکار ہیں، اپنیاسکار ہیں. 27 کے قریب کتابیں آپ نے کی شائع ہو چکی ہیں. تو خیر مقدم ہے گریما شریواستو جی آپ کا ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ. اور آج جس کتاب پر ہم بات کریں گے ہری ونش رائے بچن، جیون اور سرجن کے سوپان. تو کیوں نہ گفتگو کا آغاز ہری ونش رائے بچن جی کی کویتا سے کیا جائے. ہاں بالکل، آپ کے پاس ہے یہ کتاب، اور بڑا ہی اچھا آپ کا یہ وچار ہے کہ مدھوشالا ان کی ایک ایسی کرتی ہے جس کے اب تک 68 سے زیادہ سنسکرن نکل چکے ہیں، اور پچھلے 85-86 سالوں میں جب سے یہ کتاب اتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے، اتنی زیادہ کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ لوکپریتا کی درشٹی سے اور کسی کی کویتا اتنی زیادہ لوکپریہ ہوئی ہے. تو یہ آپ بھی میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مردو بھاووں کے انگوروں کی آج بنا لایا حالا، پریتم اپنے ہی ہاتھوں سے آج پلاؤں گا پیالہ، پہلے بھوگ لگا لوں تیرا پھر پرساد جگ پائے گا، سب سے پہلے تیرا سواگت کرتی میری مدھوشالا. اور یہ مطلب یہ ایسی کویتا ہے کہ جس کو ہر یووا ہر یگ میں گاتا رہے گا. مدرا لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا، کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے وہ بھولا بھالا، الگ الگ پتھ بتلاتے سب پر میں یہ بتلاتا ہوں، راہ پکڑ تو ایک چلا چل پا جائے گا مدھوشالا. ہری ونش رائے بچن نے یہ 1929 سے 1933 کے بیچ میں یہ لکھی تھی مدھوشالا، اور دسمبر 1933 کے انک میں سرسوتی پتریکا کے انک میں اس کی 10 رباعیاں چھپی تھی. اور اسی دوران BHU میں بنارس میں اس کا انہوں نے سارجنک پاٹھ بھی کیا تھا. اور شروعاتی دور میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہری ونش رائے بچن کی اس مدھوشالا کو لوگوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو پبلشرز نہیں ملے تھے. لیکن بعد میں اتنے پبلشرز ملے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی پستک میلہ ایسا ہو جہاں پر آپ کو مدھوشالا کی کوئی پرتی نہ ملے. بالکل لگاتار چھپتی چلی جا رہی ہے اور ہر پرکاشک اس کو چھاپ رہا ہے. اس کا جو جیون درشن ہے وہ ایک اکیلے ویکتی کا جیون درشن ہے،
اور جو स्वच्छंदतावाद की जो धारा आपको दिखाई पड़ती है, जिसके प्रणेता के रूप में हम श्रीधर पाठक को जानते हैं, उस स्वच्छंदतावाद को पुख्ता करने में, हिंदी कविता में उसको लाने में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखते हैं, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पीलू हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। इस किताब में मैडम एक अध्याय है शमशेर बहादुर सिंह और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती पर, उनकी मित्रता पर, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, शमशेर बहादुर सिंह मुझे वो एक बहुत ही प्रबुद्ध और एक बहुत परिपक्व कवि है, और इनकी आपसी मित्रता निश्चित रूप से थी, और इसीलिए इसमें ये मुझे अध्याय है। ये देखिए, ये वो दौर था जबकि लोग पत्रों के माध्यम से मित्रता निभा लिया करते थे। आज का जो समय है वो तो था नहीं। शमशेर बहादुर सिंह खुद, उन्होंने बड़ा एक लंबा जीवन अकेला गुजारा, और टूटी हुई बिखरी हुई, आपने उनकी कविता तो पढ़ी ही है। खुद बच्चन ने लिखा कि शमशेर जब मेरे जीवन में आए तो मुझे ऐसा लगा कि शमशेर मुझे संभालने के लिए आए हैं, यानी लेखन के पथ पर दोबारा अग्रसर करने के लिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि नियति ने मुझे, शमशेर को मेरे पास इसलिए भेजा ताकि मैं मुझे जैसे पथ प्रदर्शक मिल गया शमशेर के तौर पर। तो उनका जो संबंध था एक बहुत ही पवित्र और बहुत आत्मीय संबंध था, और इस संबंध पर अलग से चर्चा की जा सकती है, और शमशेर ने भी बच्चन के बारे में लिखा है। और ये भी कि निशा निमंत्रण की बहुत सारी कविताएं उन्होंने सबसे पहले शमशेर को ही सुनाई थी। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी जो थी उनका नाम था श्यामा, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई तपेदिक के कारण। उन दिनों टीबी का कोई खास इलाज नहीं था, तपेदिक हुआ था बच्चन को भी, लेकिन बच्चन स्वस्थ हो गए और तपेदिक से उनकी पत्नी जाती रही। श्यामा जो उनकी पत्नी थी उनको वो बहुत प्यार करते थे, और वो रुग्ण थी, बिस्तर पर थी, इसके बावजूद वो एक कवि के लिए एक ऐसी पत्नी थी जो कि उनकी प्रेरणा भी थी। श्यामा के जाने के बाद हरिवंश राय बच्चन, जब तक उनकी मुलाकात तेजी बच्चन से नहीं हुई, तब तक हरिवंश राय बच्चन बहुत ही उन्होंने खुद लिखा कि मैंने अकेलेपन का एक बहुत लंबा समय गुजारा। ये जो अकेलापन है, इस अकेलेपन के लिए नार्डिन गॉर्डिमर ने कहा कि अकेलापन हमें वो एकांत देता है जिस अकेलेपन में हम सृजन कर सकते हैं। सर्जक होने के लिए एकांत चाहिए। खुद हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मेरे साथ अजीब सा वाकया घटता है कि जब मैं सार्वजनिक तौर पर मंच पर कविता का पाठ करता हूं और जब श्रोता और दर्शक चले जाते हैं तब मैं अचानक अकेला हो जाता हूं। ये जो रचनाकार का अकेलापन है, इसको आप क्रिएटिव सॉलिट्यूड जो आप कहते हैं, जो कि रचनाकार के लिए जरूरी भी है, क्योंकि रचनाकार अगर अकेला रहेगा नहीं तो वो भीड़ में तो रचना नहीं कर सकता, फिर वो बस फेसबुक पोस्ट लिख सकता है शायद, है ना। तो ये अकेलापन बच्चन में है, और ये अकेलापन उन्हें निरंतर प्रेरणा भी देता है। और उन्होंने बड़े मतलब कह लीजिए कि
शमशेर का जो अकेलापन है वो बच्चन में भी वो अकेलापन है। दोनों की जीवन में बहुत समानता थी, क्योंकि खुद इस किताब में जो मित्रता बच्चन और शमशेर, इस लेख में मैंने पढ़ा कि दोनों की पत्नियों का देहांत हो गया था और आर्थिक कठिनाइयाँ अलग थीं, और शमशेर जी देहरादून चले गए थे, और उसके बाद शमशेर ने उनको अपने अकेलेपन की कथा सुनाई थी कि कैसे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कैसे वो उनका जीवन बहुत सूना हो गया। एक तरह से मित्रहीन जीवन से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है कि आपका कोई नहीं है जिससे आप वो सब कुछ कह सकें जो आप कहना चाहते हैं। इस किताब के हवाले के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र शामिल हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन के हैं, और इन चित्रों की जो क्वालिटी है, जो स्तरीयता है, वो प्रकाशन विभाग ने बचा करके रखी हुई है। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम इस किताब पर बात करने के लिए। राजशेखर जी की ये किताब हरिवंश राय बच्चन। तो नाजरीन, ये था हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। शहरयार का शुमार जदीद उर्दू गज़ल के मुमताज़ शायरों में होता है। जदीद शायरी के मैदान में उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। शहरयार की शायरी में उम्मीद और आरजुओं की एक बड़ी दुनिया आबाद है। उन्होंने आम इंसानों के दुख दर्द को इस्ताराती अंदाज में पेश किया। वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी, मुझको क्यों बदला नहीं। इस नतीजे पर पहुंचने में बड़ी मुद्दत लगी, तुझसे अच्छे तो बहुत हैं पर कोई तुझसा नहीं। दूर जाती एक परछाई हवा में हिलता हाथ, मैं जुदाई का वो मंजर आज तक भूला नहीं। फिर मुझे क्यों लग रहा है ये कि मंजिल दूर है, इस सफ़र में सच यही है मैं कहीं ठहरा नहीं। एक नए अंदाज से होगी बसर अब जिंदगी, मेरे हिस्से की ज़मीं पर आसमां साया नहीं। वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी, मुझको क्यों बदला। शहरयार की शायरी हो या उनके फिल्मी नगमे, दोनों इंसानी जज्बात और एहसासात से पूरी तरह हम आहंग हैं। शहरयार के तख्लीकी जहन ने रात, कश्ती, सूरज और दरिया जैसी आम फहम लफ्ज़ियात को नई मानवियत से हमकिनार किया। शहरयार का असली नाम कुंवर मोहम्मद इखलाक था, लेकिन अदबी दुनिया में शहरयार के नाम से जाने गए। वो 16 जून 1936 में आंवला बरेली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहीं शोबे उर्दू में 1966 में लेक्चरार हुए। 1983 में रीडर बनाए गए और 1987 में प्रोफेसर के मनसब पर फायज हुए। तवील अरसे तक तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद 1996 में सुबुकदोश हुए। अलीगढ़ में ही शहरयार की मुलाकात डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी से हुई। उनकी सोहबत और तरबियत की वजह से वो शेर व सुखन की तरफ माइल हुए और शायरी की दुनिया में कमाल हासिल किया। शहरयार की शायरी को अदबी दुनिया में जो शोहरत हासिल हुई, बॉलीवुड में वही मकबूलियत उनके नगमों के हिस्से में आई। उन्होंने उमराव जान, गमन, अंजुमन और फासले के लिए नगमे लिखे। इन नगमों की मिठास आज भी कानों में रस घोलती हैं और दिल को सुरूर बख्शती हैं। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।
अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। शहरयार का शेरी सरमाया इंतहाई गिरा कदर है। उनके शायरी के 6 मजमूए मंजर आम पर आए। इसमें आज़म, 7वां दर, हिजर के मौसम, ख्वाब का दर बंद है, नींद की किरचें, शाम होने वाली है। शहरयार का कुल्लियात पहले हासिलें सैर जहां के नाम से और बाद में सूरज को निकलता देखूं के उन्वान से मंजर आम पर आया। शहरयार की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कई इनामात से नवाजा गया, जिनमें ख्वाब का दर बंद है पर साहित्य अकादमी अवार्ड और मजमूई अदबी खिदमात के एतराफ़ में ज्ञानपीठ अवार्ड काबिल ज़िक्र हैं। शहरयार ने अदब की खिदमत करते हुए 13 फरवरी 2012 को अलीगढ़ में आखिरी सांस ली और वहीं पैबंदे खाक किए गए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें अपनी राय इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं ddurduspecials@gmail.com। तो इसके साथ ही मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर।